Welcome, sir. Good evening. Hello, Deepak sir. Good evening. Good evening. Congratulations for clearing your exam. Thank you. Thank you very much. Thank you. Congratulations to your family as well. After a Thank you. very difficult phase, you have finished the examination, and I'm really Yes. proud of you. Thanks to your mentoring. So I Hard work finally pays made off. it. I really Yes. understand that the kind of dedication you have given, it was Mm, totally commendable. No doubt about that. mm, Means being a working professional, having a family, and then managing the exam and then clearing it, it was mm. way too difficult, and you have achieved it successfully. Even I don't know how I achieved it, but I somehow kept at it and was So, rewarded. how you felt the moment you saw your result? It was the most. I cannot express it in words because the previous nightmares, like I told you in May 2023, I had Hmm. got quartiles 221,443. So Yes, for most of the people, it is a passing grade. correct, correct. So that was a nightmare that still lived in my memory. So I thought, you never know, but this time the lady luck was on my side, so I got through. Perfect, perfect. So, how you managed your studies, then job life, then personal life, all thing together? As you say that you just by small time you have to accumulate every day. It's not like every day you'll spend 18 hours. I don't have that much leverage due to my because I have to attend to my work. I also have to attend to my family, my kids, and other responsibilities that come along with it. So every time when I got some spare time, so instead of watching any reels on something, so I kept focus on it. Got it. And like you have given the exam, you have studied it twice, thrice. What Hmm. suggestion you want to give to those who are actually preparing for the exam or who are going to appear for the exam in the month of August and November attempt? So the thing would be to practice, practice, practice. There's no just try to look at every nook and corner of the book. Schweizer. Frankly, I didn't go through the Gar book because I thought it's too heavy. I went through Correct. Schweizer. I studied it thoroughly. So just try to read and just ponder upon it. In what way can they ask the question, and how can they confuse you? Because mostly what happens, like if there are four answers, Hmm. three would be factually correct. That would be a factually correct statement, but that won't be means correct in respect of the question that's being asked. So you need Correct. to be, and most of the times question, the one option will definitely be there to confuse you. That will be apparently you'll find that just once you read the question, and if you come across that option, you'll say, okay yaar, ye to yahi hai, then go ahead. तो ये Like कंफ्यूजन you. तो आपको एग्जाम में होता होगा, लाइक दो ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद भी दो ऑप्शन ऐसे बच जाते होंगे, लाइक ए और सी में से कौन सा होगा? इट्स लाइक शशांक, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? No, like in terms of numericals, when I attempted, it was straightforward. करेक्ट। Numericals, I didn't get वो either. तो जो Either I got कैलकुलेशन आया वो आंसर आपका मिल गया तो राइट है वो तो। और प्लस जो फॉर्मूलाज है वो मैंने पांच पांच छह छह बार आई रोट देम डाउन, सो मुझे पता है कि इस फॉर्मूला में क्या क्या मैं क्रिटिकल कभी होता है ना कि होता है कि आप एक पॉइंट मिस कर देते हो, पूरा फॉर्मूला ही गलत हो जाता है। वो करेक्ट। दैट डिडंट हैपन विद मी, तो न्यूमेरिकल्स मेरे सारे स्पॉट ऑन थे। बट ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अटेम्प्ट्स में थे कि तो मुझे लगा, क्योंकि पहली बार एग्जाम नहीं दिया था मैंने, तो हम्म। आई फिगर्ड आउट हाउ दे कैन कंफ्यूज मी। तो ओके। जो लास्ट टाइम मैंने आई डोंट नो क्वार्टर्स तो तब भी अच्छे आए थे, बट मैं सोचा कि नहीं, इस बार लेट्स डू द अदर थिंग, अदर वे अराउंड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो सो माय आपका स्टडी आई पैटर्न वेंट क्या विद रहता गट। था पढ़ाई का? या स्टडी पार्डन। पैटर्न क्या रहता, स्टडी पैटर्न क्या रहता था आपके पढ़ाई का? मेरी पढ़ाई का स्टडी पैटर्न रहता था, जैसे रात को मैं ब्रांच से आता था 7 सवा 7, देन आई टू अटेंड टू किड्स एंड ऑल। तो उस टाइम पे इट वुड बी वेरी अनफेयर फॉर मी टू करेक्ट। एक्सपेक्ट कि मैं फिर रात को पढूं, और अगर होता भी तो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता था, क्योंकि जो बॉडी होती है ना, देयर इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक दैट इज रनिंग, सो बॉडी अपना रेस्ट टाइम ले ही लेती है। करेक्ट। तो यूजुअली यही किसी दिन अगर मान लो ऑफिस में कोई उतना हेक्टिक वेक्टिक नहीं है, तो सवेरे 5 बजे उठ के एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा, प्लस हम्म। क्योंकि मैंने मेरा पहले का भी बेस था, तो हम्म। मैंने जो क्रिटिकल एरियाज थे जहां मुझे पता था वीकनेसेस थी मेरी, जहां मुझे खुद पता था, क्योंकि यू कैन फूल एवरीवन बट योरसेल्फ। तो करेक्ट। मैंने उन चीजों पे किया, उन चीजों पे फॉर्मूलाज लिखे, और एकदम ऐसे बनाया कि एज इफ ये व्हाट इफ अगर ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आया, लेट से मैंने एक टेस्ट सीरीज खत्म की, फिर हम्म। एक अलग से पेपर बनाया कि भाई किस किस एक 3 पार्ट्स, एक क्वेश्चन है कि जो मैंने बिल्कुल सही किया और उसके हम्म। एक्सप्लेनेशन में भी जो मैं सोच रहा हूँ वही है, ठीक है।
करेक्ट। उसको मैंने किया, उसको मैंने आई मार्क्ड इट एज ग्रीन, मींस ठीक है, अगर नेक्स्ट रिवीजन में आई नीड नॉट लुक एट इट एट ऑल। ठीक है। फिर एक था आई मार्क्ड इट एज एम्बर, एम्बर एज इन कि मैंने तो क्वेश्चन सही मार्क किया, ठीक है, हम्म। बट जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें आंसर की, उसमें ठीक है, कुछ, या तो मैं सोच रहा था कि जो एक्सप्लेनेशन मेरी थी उससे गलत थी, या कोई एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन थी दैट ठीक, रिक्वायर्ड ए सेकेंड लुक, उसको मैंने ठीक। एम्बर किया, ठीक है। हम्म। और जो सबसे क्रिटिकल था, एक हो तो कोई क्वेश्चन होता है दैट टोटली वेंट ओवर योर हेड, कि समझ ही नहीं आया पूछ क्या रहा समझ है, ही करना नहीं, क्या है। हो हाँ सकता है ऐसा। बिल्कुल। हाँ। तो उस क्वेश्चन को मैंने रेड किया, पूरा रेड मार्क किया, मतलब दैट रिक्वायर्स 2-3 रिविजन्स, और उसको 2-3 एक डिवीजन। तो एक तो उसको पीडीएफ में रेड किया, और हम्म। अलग से भी एक पेपर रखा जिसमें मैं उसको नंबर लिखता था, क्वेश्चन नंबर। ठीक है। तो फिर उसके वर्ड वर्ड में सारे लिखे ये क्वेश्चंस थे कि एम्बर कौन सा किए। तो फिर जब मैं नेक्स्ट रिवीजन करता था तो हम्म, उन्हीं को कट डाउन करता था। समझ गया। आपने हमारे लेक्चर्स कितनी बार देखे? लेक्चर्स मैंने एक बार तो सारे देखे, दो बार हम्म। कुछ कुछ देखे, जैसे ओआरएम जो था आपका, हम्म। ओआरएम इट वाज लाइक ए वाटर फ्लो, बिल्कुल स्मूथ था आपका। तो एक बार हम्म। मैंने रिटन सारे टेस्ट सीरीज कर ली थी, फिर मैंने दो बार देखे थे, ओआरएम ठीक। का देखा था। ठीक है। और एक रिस्क मैनेजमेंट में भी मैंने देखा था, रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा था, और मेरे हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट का मेरा अच्छा, बट या तो पता नहीं वो क्वेश्चन टेढ़ा पूछ लेते थे दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड, बट हम्म। वही मॉक एग्जाम दिए थे सर आपने हमारे टेस्ट पैनल से? दिए थे। उसमें लगभग क्या स्कोर आ रहा था आपका आउट ऑफ 80? उसमें एट अ स्ट्रेच नहीं दे पाया मैं, क्योंकि ड्यू टू द अच्छा, स्केर्सिटी ऑफ टाइम हाँ, आई पार्ट हैड। में बट दिया। बट मैं ऐसे चलता था, जैसे मैंने कहा ना, मेरे को इतना स्क्वीज स्क्वीज करके टाइम निकालना पड़ता था। मैं जैसे समझ। क्वेश्चन देखता था, अगर मुझे पता है कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, फिर मैं हम्म। उस क्वेश्चन पे रुकता था टेस्ट सीरीज में, एज इन कि जहां मेरे को, जैसे मैंने कहा ना, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, समझ फिर मैं नहीं आ। जाके उसका देखता था कि भाई मैं कहाँ अटक रहा हूँ, फिर मैं उसको नोट डाउन करता था अलग से। समझ तो गया। फिर आप एट द एंड जितने, जी, कौन से टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लग रहे थे पार्ट 2 में? पार्ट टू में ऐसे तो इजी है, बट मेरा स्कोर नहीं आया रिस्क मैनेजमेंट में, तो मेरे लिए तो वही टेढ़ी खीर है, और वही करंट है, अफेयर्स, जबकि जबकि करंट अफेयर्स में पूरा पूरा पढ़ के गया था। पूरा आई एम पढ़ के स्टिल गए। एट ऑड्स टू अंडरस्टैंड कि फोर क्वार्टाइल उसमें कैसे, तो अभी जैसे आप देखिए 100 चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस 80 आने वाले हैं, तो क्या क्या एरियाज थे जो इंस्टीट्यूट ने बहुत डीपली टेस्ट कर रहा था, जो लग रहा था कि हाँ ये क्वेश्चंस आना चाहिए और आ भी रहे थे? इंस्टीट्यूट अब तो वो पूरा तो नहीं बता सकते, जैसे ओआरएम के स्पेसिफिकली हो गए, क्या बोलते हैं, जो जो रेगुलेटर स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, कल्स हो गए। खासतौर पे हाँ, ये आउटसोर्सिंग रिलेटेड हो गए, हम्म। like RAROC पे they won't ask a direct question, like they'll give you 10-20 figures and just find out RAROC. Any even a fifth standard person can do that. तो करेक्ट। वो RAROC के आपके अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि आपको पता है किन किन फैक्टर से RAROC इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली वो वैसे कोई नहीं है जैसे जेआईबी सीआईबी के एग्जाम होते हैं बैंक के, वो हम्म। बेसिकली देखते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में, जैसे मैं बैंक में हूँ, वर्क इन अ बैंक। हम्म। तो जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज है कि अगर आपसे मांगा जाए इनपुट, तो आप क्या इनपुट दोगे, क्या क्या करेक्ट। सिनेरियोज को कंसिडर किए। तो इट इज बेसिकली इट रिजेंबल्स अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप अपना पार्ट 2 क्रैक कर पाओगे। लर्निंग सोचोगे कि मैं मगअप करके एग्जाम में बैठ जाऊं तो ना ना पॉसिबल? ना ना, नॉट एट ऑल। आपका उनका एक क्वेश्चन आपके सारे दैट विल टीयर यू इनटू पीसेस, जो आपने मगअप किए ना, दैट विल टीयर यू इनटू पीसेस। करना पॉसिबल ही नहीं है। हर एक चीज को डीपली समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्या पूछ सकते हैं उसको अपने आप को रेडी करो, सिट फॉर द एग्जाम। या या एक और चीज है, बट वैसा पॉसिबल नहीं है। हम्म। कभी कभी कोई कोई टॉपिक होता था ना, जैसे उसमें थोड़ा चैट जीपीटी का भी मैंने यूज किया, ठीक है। जैसे उसको वर्ड में कन्वर्ट किया, ठीक है, और हम्म। 100 वो किया, तो फिर चैट जीपीटी को बोला कि मुझे इनसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप अलग अलग वे में बना के दो। ठीक है। तो वो एक जिसे कह सकते हैं मेरा इनोवेशन है, या मैंने भी कहीं से देखा है। तो वो करेक्ट। पहले पहले बिल्कुल लेमैन के क्वेश्चंस पूछता था, मैं कहता नो, नो। बट दे आर वेरी टफ क्वेश्चंस, थॉट प्रो, तो उससे भी थोड़ा अलग अलग वे में ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कुड हैव बीन आस्क्ड, तो वैसे भी किया मैंने। समझ गया। आपने भी बहुत मल्टीपल टेक्निक्स लगाई जस्ट टू ग्रैब द थिंग्स ऑफ कि हाँ बस मेरे ग्रिप में आ जाए और ये एग्जाम निकल जाए। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
रिवीजन कैसे किया सर आपने इतना बड़ा सिलेबस का सर, जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, पढ़ तो पूरा, रिवीजन रिवीजन नहीं कर पाते वो। मैंने वही कहा ना, इट्स नॉट दैट हाउ मच हैव यू स्टडीड, इट्स हाउ मच दैट यू एक्चुअली टेक इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। और वहां पे एक होता है कि जैसे 4 घंटे कहते हैं ना, 4 घंटों में 80 क्वेश्चंस, इट करेक्ट। मे सीम यार इट्स एम्पल ऑफ टाइम, बट करेक्ट। जिन जिन ने भी दिया है और हु हैव पास्ड, दे विल वाउच फॉर द फैक्ट दैट इट इज नॉट तो एनफ। मैं आपको बता और रहा हूँ सर, ये बैंकर्स आते हैं और बोलते हैं सर हमें तो एग्जाम में 1 मिनट मिलता था एक क्वेश्चन के लिए, यहाँ तो 3-3 मिनट मिल रहे हैं, आराम से कर देंगे। नो नो नो, उनको वही है ना, पता नहीं है उनको। करेक्ट। जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, आपको वहां पे बैठ के सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चंस के लिए। दे आर नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वेश्चन पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाता है। नहीं, आपको पहले समझना पड़ता है व्हाट इज एग्जैक्टली दैट दे आर आस्किंग फॉर, व्हाट इज, करेक्ट। एंड यू आल्सो हैव टू फिगर आउट दैट हाउ दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, ये तो व्हाट करेक्ट। विद, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। मान लो आपको पता भी है सही क्वेश्चन, बट उसके एक और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, हम्म। तो आपके पास ये भी देखने की कोशिश करते हैं वो। तो आपके रिवीजन का कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, एज पर माय वाइल्ड एस्टिमेट, 50 प्लस 50+ क्वेश्चन में यू हैव क्रैक द एग्जाम? मिनिमम। बट वही मुझे लगता है, वही है एक अपना मुझे डिसअपॉइंटमेंट है कि करंट अफेयर्स में मेरे हिसाब से मेरे 8 में से 6 या 7 करेक्ट हुए हैं, क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 इज अचीवेबल सर एफआरएम एग्जाम में? मैं भी आप जैसे कर सकते हैं, मेरे बूते का नहीं है अभी। बिकॉज यू आप हैव कर सकते स्टडीड द सिलेबस 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड हैं। फिर भी हम 80 का एम नहीं करके भी जस्ट एम की हाँ चलो हमें अच्छा मार्क्स आ जाए, चलो 60 करेक्ट हो जाए, हम तो भी खुश है 80 में से। नो वन इज नॉट इवन सिंगल स्टूडेंट सर, ये माइंडसेट है ही नहीं 80 में से 80 सही होना चाहिए। 80 में से 80 का तब है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ अभी ब्रांच मैनेजर जनरल बैंकिंग में, ये हम्म। वो आदमी कर सकता है जो एग्जैक्टली इसी रोल में, बिल्कुल जो प्योर रिस्क का रोल है ना, हम्म। उसमें कर रहा है, तो उसका, और वो उसमें प्रैक्टिस कर रहा है 5-6 ईयर्स से, तो वो हम्म। कर भी सकता है, उसके लिए फिर भी डुएबल है। या आप जैसे जो इंडस्ट्री की फैकल्टी है, मान लीजिए जिसने इंडस्ट्री में काम भी किया है, देन ही इज इनटू एकेडमिक्स, वो कर करेक्ट। सकता है। या सर जिसका मान लीजिए लाइफ में और एग्जाम लाइफ में सर बहुत डिफरेंस है सर। किसमें। रियल लाइफ एक्सपोजर एंड एग्जाम लाइफ एक्सपोजर में बहुत डिफरेंट है। क्यों सर? अगर कोई इंसान 5-6 साल का एक्सपोजर भी हो, या तो मार्केट रिस्क भी के भी एक छोटे से हिस्से में होगा, उसका ऑपरेशनल रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क, ये सब अनटच्ड होंगे। एक मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने वॉर में ही 8 साल बिताए में अपनी जिंदगी के, वॉर का भी, और एक फ्रेंड है सिर्फ स्ट्रेस टेस्टिंग में उन्होंने 6 साल लगा दिए। हम्म। अब उनके लिए तो एफआरएम बहुत बड़ा हो गया ना, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए। तो उन्होंने तो एक्सपोजर लाइफ में सिर्फ 1 या 2 पार्ट में लिया होगा पूरे सिलेबस में से। नहीं, इसमें कई क्वेश्चंस मैं बताऊं, इसमें कई क्वेश्चंस जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं ना, हाँ। जो मैंने एक्चुअल में चीजें होती देखी, जैसे कोई, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स ए सिस्टमैटिकली व्हाट यू से इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन। हाँ तो ठीक मैंने है। देखा है कि जैसे कोई चीज, कोई इवेंट होता है, जैसे अभी पीएनबी का हुआ था, क्या फिर कैसे बाकी इंस्टीट्यूशन को इफेक्ट होता है, तो कई जगह जहां मैं कंफ्यूज होता था ना, आई हम्म। वेंट विद माई गट। ओके। जैसे अभी जैसे अभी लाइबोर आया था, तो लाइबोर को कैसे फेज आउट करना है, कैसे चीजें पर्कुलेट होती हैं, ओआरएम में एक्चुअली क्या क्या रिस्क है, तो कुछ चीजें मैंने अपने गट से भी जो मैंने देखी है सामने होते हुए, तो करेक्ट। उसने भी थोड़ा ईज आउट कर दिया। एक्चुअली मैंने देखी कि ओके हाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिएक्ट टू इट। तो अकॉर्डिंग टू यू, आपके यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट जो एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है वर्सेस अ वर्किंग प्रोफेशनल प्योरली इन द रिस्क डोमेन या बैंकिंग डोमेन से टच में है, उसके लिए वो ज्यादा एग्जाम इजियर है एज कम्पेयर टू कॉलेज स्टूडेंट जो 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर रहा नहीं, बट कॉलेज स्टूडेंट मान लीजिए कर भी लेगा, नो ऑफेंस टू हिम, है? हम्म। बहुत ही ब्रिलियंट चीज है हम तो। बट क्या होता है, कई सारी जो रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं ना, हम्म। इट्स बेटर दैट यू एक्चुअली लिव देम। करेक्ट। सर मैं जस्ट आपसे अपने लिए गाइडेंस लेना चाहूंगा। मैं उन कॉलेज स्टूडेंट को ये रियल लाइफ एक्सपोजर का एक डमी कैसे दे सकता हूँ? रियल लाइफ एक्सपोजर का डमी कैसे दे सकते हैं। हाँ, सब जैसे वो नहीं होता है, आप फ्लाइट सिंथेसाइजर होते हैं, फ्लाइट उड़ाने से पहले आप उस सिंथेसाइजर में हम्म, बैठते हैं और ऐसा फील हम्म, करते हैं कि आप उड़ा ही रहे हैं, बट उड़ा नहीं रहते हम्म। हैं, लेकिन आप फील कर रहे हैं उड़ा ही रहे हैं। तो उड़ा ही रहे हैं, तो उनको बोलिए कि जैसे बैंक्स हैं, हम्म। ये आरबीआई, उनके सर्कुलर्स पढ़िए, ठीक है। क्योंकि जो भी कुछ होता है, जो भी बैंक्स करते हैं, वो सारे हम्म। आरबीआई के सर्कुलर्स को ही अडॉप्ट करते हैं, सेबी के सर्कुलर्स को, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मैं नहीं करता, बट क्योंकि क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे तक आ जाती है चीजें। ठीक है। ठीक है।
बट उनके लिए ये है, अगर वो उसको रेफर करें कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स जो अपार्ट वो फ्रॉम कर दैम सकते आजकल हैं, टू होल्ड अ वेरी गुड नॉलेज, और एक असाइनमेंट्स बोलते हैं ना कि हाँ चलो ये करते हैं, मेरे को इससे इसके बारे में पता चलेगा, या ये असाइनमेंट करते हैं, या फिर ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसा कुछ। सॉरी सर, ये तो जितना इसमें डेप्थ में घुसेंगे तो थिंग्स विल कीप तो ऑन आपको अनफोल्डिंग। वहां पर आपको वहीं जाना ही पड़ेगा ये चीज सीखने के लिए। जाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको कोई कितना भी डमी नहीं। बोल दूं कि जैसे मैंने स्विमिंग सीखी है, मैं कर लेता हूँ स्विम, बट जैसे कहते हैं ना, आई कैन नॉट होल्ड माई ब्रेथ फॉर टू लॉन्ग। तो मैं करेक्ट। कितना भी कोई मुझे बोल दे कि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट डू दैट, आप नहीं कर हाँ, वो सकते जब तक आप आपको। उसमें घुसेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, बट हाँ जो मार्केट से इंफॉर्मेशन मिल रही है एटलीस्ट उसको तो लेना, अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दो। मार्केट इंफॉर्मेशन को, उसको यूजेबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आजकल जैसे यूट्यूब है, देयर इज एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड दैट वी हैव। करेक्ट। तो किस किस इंफॉर्मेशन को सुनना, किसको नहीं सुनना, और जिसको सुनना उसको कैसे प्रोडक्टिव यूज में ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इंफॉर्मेशन लो जो रियल सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, जैसे कि आपने बताया आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, आप उनको रीड करो। दे आर द बट ट्रू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बट दिस वोंट हैपन ओवरनाइट। जब हम्म, आप कंसिस्टेंटली कोई चीज करते हैं ना, जैसे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तब ये चीज होती है। तब ये चीज होती है। करेक्ट। इट वोंट हैपन ओवरनाइट, आज करें कल दे विल नो एवरीथिंग। रेगुलरली एंड आपको इट इससे कीप्स टच में रहना पड़ेगा। इवॉल्विंग। गॉट इट, गॉट इट। एसबीआई में कोई अपॉर्चुनिटीज या इंटर्नशिप्स निकलती है स्टूडेंट्स के लिए? जी 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 जी, निकलती हैं। वो कॉर्पोरेट सेंटर में करियर्स में होती हैं जी। ओके, तो हम लोग स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं दैट अगर कोई ऐसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग, इट्स अ वेरी गुड लर्निंग प्लेस। एसबीआई ओके। जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, करेक्ट। फॉर लर्निंग। क्योंकि जितना बैंकिंग का एक्सपोजर है across all the domains, you say IB, agriculture, हम्म। SME, project finance, it's in everything. So यहाँ का एक्सपीरियंस अपने करियर में बहुत वैल्यूबल रहेगा उनके लिए। गॉट इट, गॉट इट। चलो, परफेक्ट है सर, इट वाज अ नाइस कनेक्टिंग विथ यू फेस टू फेस फॉर प्लेजर द टॉकिंग टू टाइम यू। आफ्टर you प्लेजर clear टॉकिंग your टू यू exam, ऑल्सो। and best of luck थैंक for यू। your future, sir, and hopefully थैंक we'll यू वेरी मच। connect again once you will start your CFA. Give a rest to yourself for a few months and यस then यस यस। connect again, sir. ओके, थैंक यू दीपक सर। Thank you, sir.